Hello students, how are you all? Myself Sangeeta Jain representing Shiv Jyoti Educational Group Kota. Students, today we will start chapter 12 Basic Geometry part 1 of class 4th Maths. Students, first you open your book page number 157 Basic Geometry. This is the chapter 12. Basic Geometry is a branch of mathematics that deals with points, lines, angles, shapes or solids. Students, we learn in geometry about the shapes and which create with lines, line segments, rays. So we discuss these topics in this chapter. Topic to be covered are points, line segments, ray and line. Now students, first we will discuss about point. A point has no shape or size. It is the smallest geometrical shape. It has no length or breadth. We denote a point by a capital letter, say A, B, C, etc. and all geometrical figures are made of points. Example is point A, point B, point C. Let us discuss on board. Students, you know about points. This is the simple we mark like that. आपने पेन से या पेंसिल से एक सिंपल जो मार्क अपन डॉट मार्क करते हैं, this is the point. And we represent this point always by a capital letter. Small letters को यूज नहीं करते हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर को ही यूज करेंगे. दिस इज द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. सो वी राइट पॉइंट ए, isn't it? Student, now we will discuss about line segment. A line segment is a part of line ending at two specific points and all the points between two end points. There are no arrow at the end. What do you mean by this? We have 2 points and we join these 2 points, so we get a line segment. A line segment can be vertical, horizontal and slanting. It has a fixed length and cannot extend it from any side. It is written as XY. और हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट का साइन, और हम बार साइन भी बोल सकते हैं इसको. सो वी मेंशन लाइक दैट x and y are the endpoints of the given line segment. This is the line segment. Let us discuss on board, students. Line segment. Students, line segment, it is a part of line also. अभी हम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके पास में इस तरह से कोई लाइन है और आपने क्या किया, उसमें से एक पार्ट को ब्रेक कर दिया. जैसे थ्रेड होता है, बहुत लंबा होता है और उसमें से आप क्या करते हो, एक छोटा सा पीस अलग कर देते हो, तो वो क्या हो गया, सेगमेंट. यू गॉट इट? एंड सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. जैसे मैंने यहाँ पर इसको ए और बी मार्क कर दिया. अंडरस्टूड? तो दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी एंड दिस लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. एंड पॉइंट्स मीन्स कि इसके आगे हम और इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. एंड वी रिप्रेजेंट ए बी और ऊपर इस तरह से बार का साइन लगा देंगे. एंड हाउ वी रीड दिस, लाइन सेगमेंट ए बी. एंड स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट हैज फिक्स लेंथ. फिक्स लेंथ क्यों है? बिकॉज वी नेवर एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड. दोनों साइड में हम इसको एक्सटेंड ही नहीं कर सकते हैं. तो जो लेंथ आपकी है वही रहेगी लाइन सेगमेंट की. गॉट इट? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक थ्रेड का हमने एक पीस ले लिया, तो उस पीस को आप क्या करोगे, या तो नॉट बांध करके ही आप क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो.
बाकी तो और कोई उसका सोल्यूशन नहीं है कि आप उस थ्रेड को स्ट्रेच करोगे और वो एक्सटेंड हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड? सो दिस इज द लाइन सेगमेंट and it has two endpoints. We never extend line segment at any cost. Now students, ray extend by a line segment means when we have a line segment और आपने क्या किया कि एक साइड में उसके एरो पुट कर दिया, ठीक है, it creates ray. क्या बनेगा उससे? रे बनेगा. द फिगर दैट यू गेट इज कॉल्ड अ रे. इट इज रिटन विद एन एरो ऑन द टॉप एज एक्स वाई. अब एक्स वाई के यहां पर मैंने क्या किया है? एरो का साइन पुट किया है. इट मीन्स कि आप इस रे को एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, और आपका फिक्स पॉइंट कौन सा होगा? एक्स इज द फिक्स पॉइंट वेयर एक्स इज इट्स एंड पॉइंट, और वी ऑल्सो से it's a initial point. A ray has one end point. These are the qualities of ray कि it has one end point. It cannot be measured as it can be extended to any length in one direction. This is the ray and it's a best example of ray is sun rays कि sun से rays निकलती हैं, ठीक है, और वो rays ऐसा तो नहीं सन के अंदर जाती है, अर्थ की तरफ आएगी, ठीक है. तो सन पर तो क्या हो गया? उसका एंड पॉइंट हो गया, और एक्सटेंड कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? वो सेकंड अदर डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रही है, और आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हो. जहां तक कोई बैरियर्स नहीं आएंगे तब तक आप क्या करोगे? उसको एक्सटेंड कर सकते हो. सो अब जब आप एक्सटेंड कर सकते हो तो क्या उसको मेजर कर सकते हो? क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड? Now we see on the board students. Ray. Look, this is the ray. We have only one end point. Means मैंने क्या किया था? यहाँ से इसको एक्सटेंड करना स्टार्ट किया, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? y डायरेक्शन में जा रहा है. Understood? So how we represent this? x y. अब मैंने x से y डायरेक्शन में इसको क्या किया है? एक्सटेंड किया है. सो वी रिप्रेजेंट लाइक दैट. इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग. वाई? यहां पर क्या हो गया कि y तो इनिशियल पॉइंट हो गया आपका, और x डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो? इस रे को एक्सटेंड कर रहे हो. सो इट इज रॉन्ग. नाउ स्टूडेंट्स, इफ वी हैव लाइक दैट, यहां पर मैंने A और यहाँ पर B मेंशन किया है. नाउ हाउ वी रिप्रेजेंट इन अ सिंबल A B, और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमने A डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया है, सो वी राइट लाइक दैट. इस कंडीशन में यदि आपने A B और इसके डायरेक्शन ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. सो वी हैव ओनली one initial or end point in ray, and we extend only in one direction, and we cannot measure the length of ray. हम length measure नहीं कर सकते हैं ray की. it means it has indefinite length. Understood? Indefinite means कि आप इसको कितना भी extend कर सकते हो. Now friends, line. A line segment extend on both sides is a line. It is written as xy or yx with arrowheads on both sides. Arrowheads means इस लाइन सेगमेंट के दोनों साइड में हमने क्या लगा दिया है? एरो लगा दिया है. सो वी ऑलवेज रिप्रेजेंट लाइन इन द बोथ डायरेक्शंस. हम इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी. अंडरस्टूड? अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड इट एज इट हैज नो एंड पॉइंट. कोई एंड पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनडेफिनेटली बोथ डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इट हैज नो डेफिनेट लेंथ. It extends indefinitely on both sides
and a line can be of many types. Students, first we discuss about line on the board. लाइन मीन्स अभी मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ लाइन सेगमेंट, और इसी लाइन सेगमेंट पर हमने क्या लगा दिया, एरोज लगा दिए, इट कन्वर्ट्स इनटू लाइन। अब ये एरो क्या शो कर रहे हैं, वहां पर जो हमने किया था लाइन सेगमेंट में हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया था टू एंड्स को, सो इट इज अ फिक्स, दीज आर द फिक्स पॉइंट, बट एरो रिप्रेजेंट कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इनडेफिनेटली बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट हैज नो डेफिनेट लेंथ, अंडरस्टूड, एंड वी रिप्रेजेंट लाइन बाय कैपिटल लेटर्स ऑल्सो एंड स्मॉल लेटर्स ऑल्सो। कैसे कर सकते हैं, ये लाइन ए और बी है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द लाइन इन सिंबॉलिक फॉर्म, और इट इज ऑल्सो करेक्ट इन लाइन। लाइन के केस में ये पॉसिबल है कि हम इसको ए बी और एरो हेड्स से हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हमने इसको रिवर्स कर दिया लेटर्स को, इट इज ऑल्सो करेक्ट इन लाइन, अंडरस्टूड। इसको हम एक स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन को। कैसे, वी रिप्रेजेंट लाइन बाय स्मॉल लेटर्स, मीन्स ए टू जेड कोई सा भी लेटर हम लेंगे और उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हाउ वी रीड दिस, लाइन एल, क्या पढ़ोगे इसको, लाइन एल, और हाउ वी रीड दिस, लाइन ए बी, लाइन बी ए, अंडरस्टूड। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ लाइन्स, horizontal line, vertical lines, curved lines, slanting lines, you already learn in earlier classes. We once discussed in this class also vertical line. Vertical line means standing lines. Standing means जब हम लाइन को कैसे बनाते हैं, इस तरह से, तो ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, वर्टिकल लाइन हो गई। ऑल्सो वी से दिस इज द, मैंने इसको नेमिंग भी कर दिया, सी एंड डी, हाउ वी रीड दिस, लाइन सी डी, और आप इसको देख करके पहचान सकते हो, दिस इज द वर्टिकल लाइन। नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यू ऑलरेडी नो अबाउट। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोलते हैं उसको, स्लीपिंग लाइन, understood. This is the horizontal line. Again we mark points x and y, and we also represent by small letters. How we read this, x y. आपको पता चल रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस क्या है। वर्टिकल में हमने स्टैंडिंग लाइन लिया था और हॉरिजॉन्टल में स्लीपिंग लाइन लिया है। नाउ नेक्स्ट type of line is slanting line. Slanting line means जो tilted line होती है, जैसे आपका एक्सिस झुका हुआ रहता है ना अर्थ में, सेम स्लैंटिंग, हट वगैरह बनाते हो तब आप ड्रॉ करते हो, ड्राइंग में भी इस तरह की लाइंस को, दीज आर द स्लैंटिंग लाइंस। मार्क कर दें हम इसको, स्मॉल लेटर से भी मार्क कर सकते हैं, दिस इज द लाइन एल, और शेप देख करके आपको पता चल रहा है कि दिस इज द स्लैंटिंग लाइन। और हम इसको कैपिटल लेटर से करेंगे तो आपको कैसे मार्क करना पड़ेगा इसको, दिस इज द पी एंड क्यू, अंडरस्टूड। सिंगल कैपिटल लेटर से आप कभी भी मार्क नहीं करोगे लाइन को, कि आपने लाइन बना दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा के और इसको पी कर दिया, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट द लाइन। यदि आपको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, यू यूज ओनली स्मॉल लेटर्स, और यदि आपको कैपिटल लेटर्स यूज करना है, यू मार्क लाइक दैट, अंडरस्टूड। दिस इज द स्लैंटिंग लाइन। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइन इज कर्व्ड लाइंस। कर्व्स बनाते हैं हम, आप ड्राइंग बनाते हो तब भी बनाते हो। कर्व्ड लाइंस कैसी होती हैं
बनाते हैं हम इस तरह से लाइंस, दीज आर द कर्व्ड लाइंस। आप सर्कल बनाते हो तो भी इस तरह से लाइन मार्क करते हो ना, दिस इज द कर्व्ड लाइन। अब लाइन है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एरोज भी बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? दीज आर द कर्व्ड लाइन। मार्किंग भी कर सकते हैं हम इसकी, दिस इज द P and this is the Q. What is the line? PQ is the line and इसको भी नेम दे देते हैं हम C and D. This is the curved line CT. Hope you understood, students. Now, students, we will discuss angles in the next segment of this chapter. Till then, goodbye, students. Thank you. Have a nice day.